use the space 2 minutes but बस introduction of the get set up के ठीक है चलिए So welcome everybody to Get Set Up, and this is a platform of lifelong learning where you and I sit together and enjoy ourselves. We dance together, sing together. कभी-कभी खाने के बारे में बात करते हैं इकट्ठे मिलके और कभी-कभी मस्ती बात करते हैं यहाँ पे पर more important एक दूसरे से पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के empower करते हैं एक दूसरे को. So this is really a platform that everybody should be on and should really get benefited by it. Today I'm bringing myself, that's Dr. Anu Mehta, and Agam, who is my TA, who's going to be with us for next 1 hour. Very important. We are getting today Bhupinder Singh Budwal, who is, a real Sardar. When I say real Sardar, I meant to say he's a really an amazing, gorgeous guy. He knows how to crack jokes. That's the best part of him. He's got humor mixed with food. He just doesn't talk seriously. That's something I really liked about him. He's always managed to make me laugh. And I'm going to just a minute before I get in, थोड़ी सी curiosity बढ़नी चाहिए. ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन सा इंसान है जिसके बारे में अनु ऐसे बात कर रही है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. And today we're going to learn about nutrition and de-stressing. मतलब ये तो सुना था कि खाना पीना खाते हैं डिस्ट्रेस कैसे होते हैं खाने से ये शायद कॉन्सेप्ट पहली बार सुन रहे हैं बट दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन इंटीग्रेटेड बाय मिस्टर बुडवाल एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज टॉक इज कि हमें पता लगे कि राइट न्यूट्रिशियस फूड्स क्या हैं और डिस्ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं हम और अपनी जिंदगी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं. चलिए I'm just going to bring him on live in 2 seconds. Let's just hear what my guest speaker is going to be doing today and who he is. Bhupinder Singh Budwal has an understanding of body core, psychology, and nutrition. He has integrated his studies from INFS, Meta Health, and psychology to create body-mind connection between food, health, fitness, emotional state of mind, and chronic illness and injury management to create a healthy and a beautiful lifestyle. तो ये हैं हमारे मिस्टर बुडवाल और मैं अब स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ because I want to carry you guys through these points of discussion, and the points of discussion that we have today are brain and stomach connection, tips of how we should be getting up and sitting down while eating, what food to eat, is water food, and why we often quit exercise. What's the connection here? अगर आपको कुछ और भी जानना है तो please put it down in the chat like always. चलिए, let me bring. Yay! Thank you, Agam. तो ये हैं Mr. Budwal. And he's going to be talking today to us about food and nutrition. So thank you very much, Bhupinder, for being here with us. Thank you for inviting me and accepting me. Thank you. It's always a pleasure to talk to you. Always you speak about something that really ignites my brain and I say, oh my God, I didn't see it like that. And so Bhupinder, जरा फटाफट बता दें कि brain और stomach का connection क्या है? मतलब ये भूख लगने का connection है कि क्या है? So, first thing that we always think about कि हमें अपना पेट पूरा करना है, पेट भरना है, okay, and we do not understand the need of the brain. So, there is so much of maths when you go online and you talk to people, everyone talks about calories. So, there are 2 questions. One, you know how to calculate the calories that you are burning, right? And do you know how much calories is your brain burning? Okay, I'm going to just mute everybody, or everybody just mute themselves. I really request that. Thank you. Yes, Bhupinder, you'll have to unmute yourself. So we cannot. No one knows how much calories is your brain using. Okay, you can use any sort of gadget and you can identify कि मैंने कितना steps चले हैं, कितने घंटे workout किया,
and the math can be done with a watch, with your phone, XYZ, everything. Okay, so till date there is no gadget which would just say that how much of calories are you burning when you're using your brain. So like for example, this 1 hour when we're going to talk, okay, you're going to feel thirsty despite moving. You're going to feel hungry sitting for 3 to 4 hours without eating. आपने कैलोरीज कहाँ बर्न की अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो? It's a very good question. Let's ask this to everybody. आपको पता है क्या कि आपका ब्रेन कितनी कैलोरीज खाता है? चलिए फटाफट चैट बॉक्स के अंदर लिखें, क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन कितनी कैलोरीज खाता है? और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है? दैट्स अ सेकंड क्वेश्चन. और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है? ओके, रुचिका घाई सेज 800 कैलोरीज. चलिए फटाफट गेस कीजिए, हमारा ब्रेन कितनी कैलोरीज खाता है? हाउ मेनी कैलोरीज इज आवर ब्रेन ईटिंग? चलिए, एक सिर्फ रुचिका. अरे गेस तो कर सकते हो, क्या होगा? बिकॉज माइंड बॉडी कनेक्शन नॉट देयर. अच्छा ठीक है, चलिए फटाफट बताइए. बेला, सबा, नॉट ईटिंग. ब्रेन इज नॉट ईटिंग एनी फूड, ठीक है, नॉट ईटिंग एनी कैलोरीज. हाउ टू कैलकुलेट? गीता बोलती हैं मैंने बाय नॉट एट ऑल. सबा सेज डोंट नो. शशि सेज, चलिए ये तो बहुत अच्छा सवाल. मैंने बोला था ना मिस्टर बुटबाल कोई ना कोई ऐसा क्रैक करेंगे जो आपके पास जवाब ही नहीं होगा. बिल्कुल. चलिए अभी आप बता दीजिए हमारे को कि हमारा ब्रेन कितनी कैलोरी खाता है. So there is no maths which you can calculate कि आप हिसाब लगा सकते हो कि आपका ब्रेन कितना कैलोरीज बर्न करेगा. मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हमेशा यही सोचते हो कि फिजिकल हम कितना यूज़ करते हैं. ओके, एंड आप सोचे या ना सोचे, आप अग्री भी करोगे नहीं भी करोगे, लेकिन आप जब भी कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो, आप या आप बैठे हुए हो, अभी भी आप बैठे हो, आप सुन रहे हो, योर ब्रेन इज वर्किंग, योर स्टमक इज नॉट वर्किंग, योर लिम्स आर नॉट वर्किंग. आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट यूजिंग माई हैंड, आई एम नॉट यूजिंग माई फीट, आई एम यूजिंग माई माउथ, आई एम थिंकिंग, प्रोसेसिंग, ओके, आई एम ब्रीदिंग, आई एम सीइंग. कितना कुछ चल रहा है, ये सारा यहाँ से मॉनिटर हो रहा है. जो जिसको हम मोडेम बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, हम कंप्यूटर की बातें करते हैं. तो आपके ब्रेन से सब कनेक्शंस आ रहे हैं, न्यूरो सेल्स, ऑल आर इंटरकनेक्टेड. ओके, एंड एंड में हम यही सोचते हैं कि हमने इतना कैलोरीज बर्न किया तो हमको इतना ही खाना है. इतना सारा मैथ्स है ना, हम मैथ्स में घूम रहे हैं, नंबर्स में घूम रहे हैं. हम सिर्फ इतना समझते हैं कि 1+1 = 2, लेकिन लॉजिक ये है कि आपको ये भी समझना है कि आपके ब्रेन को फूड ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ना कि आपके शरीर को. ओके, अगर आपने शरीर की कैलकुलेशन कर भी ली, अंदाज़न आपने कैलकुलेट किया कि मेरे 1000 कैलोरीज मेरी बॉडी बर्न कर रही है, 500 बर्न करती है, तो मुझे 1000 देना है, 800 देना है. उसके ऊपर का जो है वो ब्रेन चाहिए. आपका जो ब्रेन फंक्शंस ऑन द 70% ऑफ द फैट दैट वी ईट. अगेन, फैट दैट यू ईट, there is a difference. The fat that you eat is good fats, and the fat that your body stores is not fat, that body creates. हम इतने मिथ्स में घूमते हैं ना कि हमें अभी फैट्स नहीं खाना चाहिए. घी खाने के लिए हम 2 बार सोचते हैं, दही खाने में, मिल्क प्रोडक्ट्स खाने में हम 2 बार सोचते हैं, कुकिंग ऑयल कौन सा यूज़ करें हम 2 बार सोचते हैं. ओके, मैक्सिमम कुकिंग ऑयल से आपका गुड फैट्स आता है. फिर हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सब XYZ बहुत सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं. My logic of food is very simple. The food that our ancestors created for centuries and years, okay, you've been born and brought up with that, I've been born and brought up with that, my children are being born and brought up with that. Okay, हम 50, 60, 70, 80, अगर आप पीछे जाके देखें अपने पेरेंट्स की एज या ग्रैंड पेरेंट्स, 80, 90, 100 जो भी रही होगी, उन्होंने हमेशा दाल चावल, रोटी सब्ज़ी, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, घी, दही, ये सब क्यों खाया और वो बीमार क्यों नहीं हुए? आज हम कितना सारा देखते हैं, ये डाइट, फलाना डाइट, ऐसे वैसे, ये वो, एंड after 5, 10, 20 years someone can come and say, oh, I'm sorry, I was wrong at that point of time, that diet was not good for you. लेकिन
जो हम इंडियन डाइट करते हैं, जो हम इंडियन खाना खाते हैं, कोई भी नहीं बोल सकता है कि ये गलत है। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत खाना खिलाया है बचपन से। मैंने आपको दाल चावल खिलाई है गर्मियों में, दैट वाज सो रॉन्ग, मेरे को नहीं खिलाना चाहिए था। कोई नहीं बोलेगा। थैंक ओके, यू तो भूपेंद्र। एक मिनट यहाँ पॉज करेंगे, सबसे यहाँ पूछेंगे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन हियर, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट थोड़ी सी हटके है. We've been thinking constantly only about the body and how many calories the body will consume. But हमारा दिमाग सिर्फ fats का बना है, and our brain needs fats, good fats. Anybody has a question over here around this or anything else that Bhupinder has been talking about? Because he's saying जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे पूर्वजों का है, and that food is definitely helping us and has never really harmed us in any whichever way. Any questions here? You can unmute yourself and ask. Yes, Anjana. I'm just getting her on. Yes, Anjana. पूछिए. Actually, yeah, somewhere along the way, we have missed out on some things. But along with this, we are leading a sedentary lifestyle. So it's not just the food, you know, it is the way we live that has made a huge difference. We are following our ancestors' way of food, but as far as the exercising is concerned, the physical work is concerned, we are not doing that. I think that also is a factor. Anjana, just stay there. Bhupinder, if you can answer that, please. Thank you. So today we relate a lot of things with exercise. Let's understand that every generation has evolved. Every generation coming in is better than the parents. The parents were better than the grandparents. So you are supposed to evolve every generation. Okay. So in the yesteryears, the physical exercise करके कुछ नहीं था. People used to walk from village to village or cycle, bullock carts. Then comes the vehicles. Today we are flying, you know, and then the movement is there. So today we are just connecting things to exercise. Okay, all I am saying is that not everyone wants to exercise. What if I don't have the time to exercise? I don't have the interest to exercise. Lekin to wear a chappal or go bare feet or wear a shoe and just go down for a walk for 20 minutes, 30 minutes is still an exercise. Moving in your house is still an exercise. Doing your kitchen work is still an exercise. Okay, giving instructions, watching that person do things is still an exercise. We can just put the word exercise to anything and everything. The interesting part is the body needs movement. Okay, it wants to move. Okay, so I can sit for next 10 minutes, I can stand for next 10 minutes and talk. I'm still exercising. I can stand and work and I can work for 1 hour, I'm still exercising. Okay, What I exercise. meant was the sedentary lifestyle. Yes, I do agree, because when I am in the kitchen and I come to the fridge, yes, I am walking. I'm not denying that. But, you know, like when we had to sweep now we live in apartments. Otherwise, we had to sweep our yard. You know, those kind of movements where you bend down. Now everything is, you know, at a comfortable level. So the bending down has gone down. And then in the office, you go to the office and you sit for such a long time. Yes, we do walk, but the quantum of, okay, you don't like the word exercise, movement has drastically changed. Don't you think so? And why is it that we have so much of knee pain and we have frozen shoulders developing after 40? So isn't that because of lack of movement too, not just food? It can Could be it be movement, not it that? can be sleep, it can be emotions, it can be a lot of things. Yes, that has been So there all it's a very throughout. vast topic. So if you talk about sitting and moving, it's very simple. That how about moving the washroom, moving the commode and do it in Indian style? It's still going to Yes, you're going to squat every time. So the control is always in our hand. that is The true. control is always in our hand. So just to give you a situation, even I stay in Bombay, okay, but I have my dinner at 6:37. It's my choice to have my dinner at 6:37. It's my choice to sleep at 9. It's my choice to wake up at 4. It's my choice. Okay, That's I true. can blame the city, I can blame the people, I can blame the friends, I can blame the family, I can blame everyone. I think we need to create more awareness of the fact that it is No, you not need to just take exercise charge. and the food. Huh? You need to take charge. You need to Yes. take charge.
So I'm bringing in Sabah Khan, and Thank there you. is another question. What should Shashi says? This is fabulous, very interesting, and she says, but what should we eat at the age of 70? So we're going to come down to that, but before that, let's get Sabah Khan in and let's ask her what is the question she has on her mind. Hello, sir. Hi. Nice to. This is the question you are telling ki when you are in a kitchen, you are moving and you're moving. That is a exercise. But if we are in the kitchen and cooking, it will take 2 hours or 3 hours. That is the stress, increase the stress level. That is not going to exercise anymore. This is my point. Thank you. As Yes, so I feel. that is where we move to the ahead. We have a small talk on this, that why food is important and why people fail to exercise. Thank you so much, and we'll go straight to that to answer Sabah's question. Thank you, Sabah. So basically हम बात ये कर रहे हैं, अभी तक बात ये हुई है कि हमारी बॉडी में जो ब्रेन है उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं कि कैलोरीज कितनी हमारी ब्रेन खाता है. How many calories is our brain eating? Because brain is made up of fats and it needs certain good fats to go in. And yet, even if we are not exercising, we are feeling hungry, we are feeling thirsty. So body movement is also required, is what has come in. And let's go further. Bhupinder, बताइए जरा यहाँ पे क्या खाना चाहिए और why exercise and all that. Thank you. So one thing is, then if you understand the brain functions on the fat that we eat, जो हम good fats खाते हैं, और जब आप वो नहीं खा रहे हो तो आपकी बॉडी फैट क्यों बना रहा है? सो वन बिग क्वेश्चन इज दैट अगर मैं इतना नहीं खा रहा हूँ या इतना गलत नहीं कर रहा हूँ तो बॉडी फैट कहाँ से आ रहा है? ओके, बिकॉज एवरी फूड दैट वी ईट उसमें एक कंपोनेंट होता है फैट्स का, कार्ब्स का, प्रोटीन का, आप कैसे भी सब डिवाइड कर लीजिए. फिर उसके नीचे हम माइक्रो लेवल्स पे विटामिन एंड मिनरल्स में चले जाते हैं. ओके, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. योर ब्रेन विल ऑलवेज सिग्नल द बॉडी, ओके, एंड विल मेक यू ईट मोर और मेक यू ईट दैट जिससे उसको एनर्जी मिले. ओके, व्हेन यू मूव टू अ चिप्स और अ बिस्किट, आप उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए. उसके अंदर ऑयल यूज़ किया होता है, उसमें एक्स्ट्रा शुगर यूज़ किया होता है. ओके, इट विल मेक यू ईट दैट मच ताकि उसको संतुष्टि मिले. कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ खा के आपको लगता है हाँ बहुत अच्छा लगा, भले आपने इतना नहीं खाया लेकिन भले इतना सा ही खाया, यू फील की सेटिस्फाइड. आवाज़ यहाँ से आ रही है, यहाँ पे तो अभी भी खाली है पेट. So you understand your brain is getting full. How about changing the entire eating pattern? Okay, आप उसको सही तरीके से खाइए, प्रॉपर कार्ब्स दीजिए, फैट्स दीजिए, प्रोटीन दीजिए, प्रॉपरली खाइए उसको. Your brain will still get happy. Okay, that fat which you are storing is food retention probably or water retention. ठीक है, क्योंकि उसको वो डेपोजिट स्टोर हाउस है आपकी बॉडी. ओके, सो आई गिव दिस एग्जांपल टू एवरीवन. You have a car, it runs 1 लीटर पे 15 किलोमीटर्स. आप गाड़ी में 1 लीटर भरो एंड ट्राई गोइंग 15.100 100 मीटर्स. गाड़ी नहीं चलेगी, 15 पे रुक जाएगी क्योंकि इसकी माइलेज उतनी है. ह्यूमन बॉडी 1 लीटर पे 15 किलोमीटर चलती है. ठीक है, लेकिन वो 15 नहीं, वो 30 भी चलेगी. क्यों? उसको वो माइलेज टारगेट दिख गया है. उसने 1 लीटर को 2 में डिवाइड कर देना. आधा लीटर 15 किलोमीटर चलेगा, आधा लीटर रिजर्व अगले 15 किलोमीटर चलेगा. ओके, दैट इज फूड रिटेंशन. योर ब्रेन ऑलरेडी नोज व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अनुजी. योर डे इज कंप्लीटली अलाइंड. द नाइट यू स्लीप, यू नो द नेक्स्ट मॉर्निंग का आपका 24 आवर्स का रूटीन क्या है. तो रात को ही आपका जो खाना है, अगर आपने अंडर ईट किया है, आप स्टोर कर लेते हो. फिर रात को कई लोग बोलते हैं कि मेरे को यहाँ तक स्टफ हुआ है, ब्लोटिंग हो रही है. आधे जन तो रात को स्लीप डिप्रिवेशन और what all they call insomnia and all those big words happens because you're not eating right and you've not slept well. You've not slept well because there is a lot of heaviness. Your body is actually fighting to make it digest, store. नींद कहाँ से आएगी? पूरा शरीर तो उसको होल्ड और उसको डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है. जब पेट शांत होगा, मन शांत होगा, एक्टिव होगा. I am not tagging these illnesses. Yes, they are being worked with food. You just change the eating pattern. You feel good in the night. You fall asleep better.
It's so simple. That is the way I understand food, and that is the way I understand illness. Wonderful. So anybody who would like to ask a question here, because it's a very different concept, कि आपका brain जो है, वो actually it's like the leader who's telling everything what to do, what not to do. It is standing over there and has to feel satisfied. It's not your stomach that's feeling satisfied. It's not your body that's feeling satisfied. It's your brain that has to feel satisfied. और जब तक आपका brain satisfied feel नहीं कर रहा है, आप खाते जाएंगे. Because आपको वो full होने की आदत, मतलब feeling satisfied, feeling complete is not there. And that could be because you're stressed out about something. That could be because तुमने खाना इतना रात को खा लिया है कि उसको पचाने में आपकी body stress out हो रही है. Your body, so beautifully Bhupinder says, is a storehouse. तो imagine करो कि आपका जो सिर्फ top है, ये leader है, जो आगे पीछे has to be satisfied, और पूरी body आपका storehouse है, जिसको ये वाला ऊपर का खोपड़ा basically is going to manipulate. Any questions here? Manjushri has raised her hand. Manjushri, aa jaiye. I love the debate. It's making you guys think, and that's Yes, Anudhi, actually, I wanted to ask, कि especially in summers, I'll not say about winter, especially in summers, चाट खाने का बहुत मन करता है, पर खाना खाने का मन नहीं करता. मतलब दिन भर चाट खा सकती हूँ, पर खाना कोई बोल सैलेड खा लूंगी, पर खाना नहीं खा सकती. और जूसेस पी सकती हूँ, इवन अपने बटर मिल्क पी सकती हूँ. बस वही है, खाना खाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है. भूपेंद्र, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पानी कितना पीते हो हाँ जी. दिन मैं में? पानी पीती हूँ आराम से, 2-2.5 लीटर पानी पी लेती हूँ. 2-2.5 लीटर आपका सुबह 12 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए. आप वो पूरे नहीं, दिन वो में तो पीते नहीं हो. होता है, वो नहीं होता है. I'll Body agree में. with that thing. So that is where the issue is. Okay. That is why in our Thank- culture we have pickle. Pickle. Or there is one big reason why mangoes come in summers. You have two fruits, mangoes and watermelon. Yes. So people claim कि mango is unhealthy, fattening है. Again the word fat comes in. And गर्म भी होता है उसका तसीर. तो वो गर्मी में ही क्यों पैदा होता है? ना, उसको तो हम लोग पानी में भिगा के रख देते हैं 1-2 पानी में घंटा. मत भिगाओ आप, तो भी गर्म नहीं है. अच्छा. बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल जैसे सबा जी फास्ट कर रहे हैं, अगर मैंगो सुबह एक ब्रेकफास्ट में खाएंगे ना, जो सुबह वो खाते हैं उसमें, एंड पानी पी लेंगे, दिन भर उनको प्यास नहीं लगेगी. बिकॉज गर्मी में ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे ही बैठे हो, इन एंड आउट भी करोगे. बॉडी टेम्परेचर बहुत मैनेज करना पड़ता है. भले आज एसी में बैठे हैं, लेकिन स्टिल एसी का मैनिपुलेशन भी बाहर के टेम्परेचर से होता है. वही सेम एसी ठंडी में और ठंडा हो जाएगा, गर्मी में और गर्म हो जाएगा. वाटर इनटेक आप बढ़ाओगे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपको प्यास लगेगी, आपको भूख भी लगेगी. आप एक्स्ट्रा सॉल्ट खा रहे हो, चटपटा खा रहे हो, ताकि आपकी किडनीज फंक्शन कर सके प्रॉपरली, वाटर रिटेन कर सके. 2.5 लीटर पी रहे हो, वो नमक खा के आप उसको 5 लीटर स्टोर कर रहे हो. ओके. थैंक यू सो मच भूपेंद्र. थैंक यू सर. क्या है ना कि हमें लगता है कि हमारी बॉडी जो मांग रही है, वो रीजन है कि वो मांग रही है. एंड दिस इज व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड हैव बीन टू भूपेंद्र एक्चुअली. क्या हम पानी खाते हैं? क्या पानी इज आल्सो पार्ट ऑफ अ डाइट? के is yes, let's get Anjana in. And guys, you'll have to excuse me, I have to open the door to my little doggy who wants to go out. She's a princess. Tell you. Can I ask the question? Yes, please. Yes, ma'am. Yes, please. You were telling that the brain will tell us whether we need to eat something. You know, the feeling, the craving comes. Supposing you were talking about water now. Now, in case you don't feel that thirst, you said you should drink that 2 liter before afternoon. Now my brain doesn't make me feel that thirsty. Do I need to drink it again? That much, whatever quantity you say, okay, you need to drink 4 liters of water in summer, but my brain is not telling me that. It need not tell me. So it's a 4-day theory for you. Try this from today. Okay. So what happens is that I generally don't feel thirsty. Okay, that's why the question. Fine. You will start feeling thirsty in 2 days of what I'm saying. I'm going to say what I'm going to say. You practice it. Okay. You do feel thirsty.
okay, but somewhere in the past the thirst was never recognized. So your brain and your body creates a mechanism. It adapts the situation. We are humans. That is how we evolve, because we adapt situation, and we can come out of any sort of situation. A weak man can fight a tiger to survive, kill the tiger जिसने आज तक कोई मच्छर भी ना मारा हो, अगर उसको survive करना है तो. Okay, so what you do is that when you were feeling thirsty, you were not listening. It's called listen to your body. Right, right. Okay, so once, twice, thrice, four, five, there will be a pattern. After those many days, the body will say you're not listening. It creates its own adaptation. Okay, like where I'm saying water retention. Let's say that your body requirement is 4 liters of water and you just give 1 liter or 2 liters, and you are going to, I'm using the word exploit. आप अपनी बॉडी को एक्सप्लॉइट करोगे, कम दे के ज़्यादा. हमें आदत है ना नेगोशिएट करके थोड़े में ज़्यादा लेना, थोड़े में बहुत कुछ करना. Right. हर एक चीज़ में हम अंदर बॉडी के अंदर भी वही कर रहे हैं. वी आर नेगोशिएटिंग अ लॉट. So your body will retain the water and stop giving you signals of being thirsty. Okay, how do we reverse that? Okay, let's use technology now. There is so much of technology, but we use it in the wrong sense. We view a lot of things. Let's Right. take the phone, place an alarm. I'm just giving a situation. Let's say that I have to have 4 liters of water every day and I'm struggling to reach even 1.5 or 2. मुझे अभी इसको डबल करना है. अब let's say 8 a.m. to 8 p.m. का अलार्म लगा लो. 8 a.m., 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Every 60 minutes the alarm rings. All you need to do is just pick the glass, have the glass water, 250 ml of water. You're thirsty or not. Okay, you do this. It's a 4-day brain theory, 4-day theory. You do it for 4 days. Okay, the 5th day or probably the 4th day, it differs from person to person. You will start feeling thirsty. The best part about feeling thirsty is 8 o'clock का अलार्म है, 7:45 को आपको प्यास लगेगी and you will listen, you're feeling thirsty. Okay, you've trained your I brain. will. Okay, Thank you. and every hour you will feel the thirst because you start listening that you're feeling thirsty. Okay, When अभी you इसमें said दो that, I must have done something. Suddenly I remembered, because going to office made me, cut down on the drinking of water so that I don't go to the restroom, public restroom. yes, so I'm coming Thank to that point. The Yes, point thank you. why being a Yeah. woman I would quit more than being a male. It's not a discrimination, but it is very normal for a male to stand and leak despite seeing the entire notice and hoarding. They can start anywhere. A female would not. So why would I quit being a female, being a woman? Is because I am not comfortable going urinating every 30 minutes. Okay. So true. So let's say tomorrow is a bank holiday, you're not working, you're not going out, long weekend है. आज से आप शुरू करो, संडे तक क्या होगा, आप every 30-40 minutes you'll go to the washroom, stay at home, do not make any travels. Okay, the body has to throw out all the toxins out, urinate. आधी एसिडिटी हमारी पानी पी के निकल जाती है, जिसके लिए हम Right. पता नहीं कौन सी दवाइयाँ और वो सब पिल्स सिरप विरप पी पी के गोल गोल घूमते रहते हैं. After those days, what will happen is that your urination schedule will increase, will go to 30 to 45, 60. Okay, you will go back to a urination time of probably 92 hours में एक बार आप जाओगे, which is completely manageable. Thank you. Thank you. I will do that. Okay. Thank you so much. That is one reason why we understand water, but we quit because I have to go and urinate every hour. Who's going to do that? True, true. It's very Very true. frustrating. Thank you so much for that question and beautifully answered. Let's go to Geeta Parekh, and I'm going to get Geeta Parekh right here. Geeta, पूछिए. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर. Good मुझे afternoon. एक अभी जो डिस्कशन किया कि किचन में हम काम करते हैं एंड जो डेली एक्टिविटी होती है, एग्जांपल डेली आई एम गोइंग टू द मार्केट एंड डेली फॉर 1 or 2 hours और मोर देन दैट आई एम वर्किंग इन द किचन, तो कैलोरी बर्न होती है. बट सेम टाइम मैंने ऐसा भी सुना है कि दैट इज अवर रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसमें कैलोरी नहीं बर्न होती है. To burn the calorie and the food consumption, we have required the minimum exercise. तो उसके बारे में पूछना था कि ये जो है mythology या whatever, this is the correct और आपका क्या कहना है? Thank you, Geeta. Every- That's a beautiful question. Yes. Everyone wants to sell their concept. मुझे भी कुछ तो मैं अभी आपको मेरे जिम्नेजियम में कैसे एक्सरसाइज करने लगा हूँ.
तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इतना तो करते नहीं हो, मार्केट आप 1 ही घंटा जा रहे हो, 1 घंटा ही चल रहे हो बस, उसमें क्या होगा आपका? आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 4 घंटे की है। फिर मैं आपको बोलूँगा आप जिम आ जाओ, वो 4 घंटे का काम मैं आपको 1 घंटे में करवा लेता हूँ। द लॉजिक इज़ दैट एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग है। शायद मैं स्विमिंग पूल में सिर्फ बैठ के अपना फैट बर्न कर लूँ, स्विमिंग भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैठ के अपनी हाइड्रेशन पूरी कर लूँ और मैं खुश रहूँगा। Vinder, इसके ऊपर थोड़ा सा elaborate करते हैं, because when I had heard this concept for the first time, he asked me to all to do is go and sit in the swimming pool. That's all he asked me to do. Go stand in the swimming pool if nothing else, or fill up a tub of water and sit down in it. Can you elaborate on that? What are you trying to actually say? Because अगर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? So there's a concept which I integrated then after meeting Anuji, because she educated me, and it's called take up a sport concept. So I understood that everyone's requirement is different. तभी मैंने नाम नहीं दिया था, तभी मुझे सिर्फ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, बिकॉज everyone used to ask कि मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना है, and I used to say that तू जिम मत जा, तू ये कर, तू वो कर. The logic was that हर एक की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है. अगर आपकी बॉडी वॉक मांग रही है तो आप जिम क्यों जाओगे? अगर आपकी बॉडी टेबल टेनिस या टेनिस गेम मांग रही है तो आप स्विमिंग क्यों जाओगे? सो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है. सो जो कॉन्सेप्ट था अनु जी के लिए फॉर वाटर वॉज वेरी सिंपल. शी वॉज नॉट हैविंग वाटर, ओके, एंड इवन टुडे आई स्टेट, आई एम सॉरी, आई एम लाउड, स्टेट दैट शी नीड्स वाटर बिकॉज वी आर फिश बॉडीज, ओके. हम आई एम अ फिश, ओके, लेकिन सिर्फ फ़र्क है कि पानी मेरे अंदर रहता है, मैं पानी में नहीं रहता. तो अभी मैं हाइड्रेशन कैसे करूँ? सो आई आस्क दिस वन सिंपल क्वेश्चन, ट्राई दिस एंड यू शुड रियली पे अटेंशन टू दिस. आप जिम में आप स्विमिंग पूल में जाते हो, पानी मत पियो पूरा दिन, ठीक है, एंड यू गो टू द वाटर, यू सिट फॉर 1 आवर. आप बाहर आते हो, आपको यूरिनेट क्यों होगा? अगर आप कभी स्विमिंग पूल गए होंगे, आपने बिना पानी पिए भी स्विमिंग पूल से बाहर निकलोगे, यू वांट टू यूरिनेट एंड यूरिनेट वेरी बैडली. पानी तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से तो आपने बूंद भी नहीं लिया. सो हमारे पोर्स हैं ना, दे टेक वाटर, ओके. सो दिस इज द मोस्ट ईजी वे टू गेट हाइड्रेटेड. सिट इन द वाटर जस्ट फॉर 30 to 40 minutes एंड यू विल बिकम हाइड्रेटेड. फिर वहाँ से आप अपना पानी पीना शुरू कर दो, बढ़ा दो पानी इनटेक, बिकॉज आपके पोर्स भी पानी पीते हैं. And this So can that be is where- very good for a dry skin. It can be very good for people who are becoming older. क्योंकि कुछ करना नहीं है, सिर्फ it is very good for people who are having kidney issues. Simple. शाबाश. मतलब आप समझ गए, कुछ करना नहीं है, पानी के टब में बैठना है, डुबकी लगानी है, बस. ऐसे ऐसे जैसे गंगा मैया में करते हैं ना, ऐसे करके डुबकी लगानी है, उसके अंदर बैठना है और बैठ के मेडिटेशन करो, और फिर देखो आपकी बॉडी अपने आप काम करती है. बस उसे पानी देना है यार, ठीक है. और गाना याद आ रहा है मुझे, पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी में. आप समझ गए हैं. What am I trying to say to you is we probably try to make very expensive things to hydrate our body, our system and everything. It's very simple. Pani piyo yaar, it's part of your diet. If your hydration goes down, everything goes down. And ये चीज मुझे भूपिंदर ने बड़े अच्छे से सिखाई थी. यहाँ तक कहा था कि अगर आपके पास टब नहीं है तो आप ऐसे करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो वाला हाल, कि आप एक काम करो, एक टब लो, उसके अंदर पानी डालो और अपने पैरों को उसके अंदर भिगो के बैठ जाओ. Meaning what? We do that with our plants. He literally made me do it with myself, and I realized, my God, body is actually soaking water. Okay, any questions here? Any questions here, guys? हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, आप सवाल पूछ सकें. वंदना, नमस्ते जी, आप पूछना चाहते हैं कुछ? Ma'am, there is a question in the chat. How Yes. can Hello. we make our brain strong? How to make our brain strong is a question put in the chat. Anji, and yes, Manjushri also wanted to ask something. Or was it? Okay, chaliye. How do you make your brain strong?
Swindon. So there are two ways to understand food. It is intuitive eating. ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि क्या गलत है, क्या सही है. It's in a very simple nutshell. There are two things which I always tell to understand food. Anything which comes in packet is not food. Anything which is made out of maida is not food. आप ये दो चीज़ों को समझ लोगे ना, you will suddenly see that there is a lot of food in front of you. Okay? What I mean by packet is जो जिस पे एक्सपायरी डेट हो. ओके आप एक फ्रूट शॉप या वेजिटेबल शॉप में जाते हो, हम सूंघ के लेते हैं एप्पल, मैंगोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये ताज़ा नहीं है. ठीक है, बिना उसको सिर्फ हाथ लगा के उसको देख के हम बोलते हैं कि ये ताज़ा नहीं है. ओके, एंड सेम चीज़, सेम फॉर एग्जांपल अ मैंगो और एन एप्पल का आपको जूस मिलता है पैकेट में. ठीक है, और उसके अंदर एक एक्सपायरी डेट होती है, 6 महीने की होती है. अब ये फ्रूट आपने उठा के देखा, ये बोलोगे 2 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी गला हुआ है, ये तो ऑलरेडी पक चुका है, अब कल ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मेरे पैसे चले जाएंगे. अब वही चीज़ जाके पैकेट में ले रहे हो जिसकी 6 हफ्ते की एक्सपायरी डेट है. वो एक्सपायरी डेट कहाँ से आई? जो चीज़ 1 दिन में ख़राब हो रही थी वो 6 महीने कैसे चल रही है? Wow, that's a very, very, very interesting question. जो Because चीज, yes, वो उसके अंदर प्रेजर्वेटिव यूज करते हैं ना. यस, सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा शुगर यूज़ करते हैं. ठीक है, हम उस पे सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो मेरा घर का नमक है मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए. लेकिन उसके अंदर क्या सॉल्ट यूज़ का कोई नहीं पूछता. हम ये भी क्वेश्चन करते हैं कि घर का कुकिंग ऑयल रिफाइंड होना चाहिए, ऑलिव ऑयल होना चाहिए. लेकिन अगर किसी ने आपको कोकोनट ऑयल के लड्डू खिला दिए, दिस इज़ टू फैटनिंग एंड इट इज़ नॉट हेल्दी. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, पहले हम मिथ्स क्लियर कर लेते हैं. तो मिथ्स तो बहुत सारे हैं, तो उसको मैंने एक 2 पॉइंटर्स में आपको समझा दिया. जो पैकेट में आया वो नहीं खाना है, और जो मैदे का बना वो नहीं खाना है. ये 2 चीज़ निकालोगे आपको सिर्फ खाना दिखाई देगा, दैट इज़ फ्रेश. आप वो खाइए. अब उसको हम कैसे खाना है? इंट्यूटिव ईटिंग का लॉजिक मेरा ये है, जिसको हम एक सिर्फ टाइम फिक्स करते हैं कि अगर मुझे दिन में 5 बार खाना है, 4 बार खाना है, या 3 बार खाना है, 2 बार खाना है, वो टाइम फिक्स रख लो. ठीक है, लेट्स से मुझे सुबह 8 बजे नाश्ता करना है, तो एवरीडे मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करूँगा. अब वो नाश्ते में क्या करूँगा, या तो मेरा मन बोलेगा आज सुबह उठ के कि आज मुझे खाना है पोहा, आज मुझे खाना है पराठे. हम पराठों को गालियाँ देते हैं, लेकिन हम ब्रेड को कभी सवाल ही नहीं करते हैं, बिकॉज पराठे घी में बने होते हैं या उसमें आलू होता है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट पोटैटोज आर द विलन्स. अगर सब्जी में पोटैटो डाल दो ना, अगला आपके घर पे आया वो बोलेगा भाई मैं तो पोटैटो नहीं खाता, ये फैटनिंग है. और वही पैकेट चिप्स का आप उसके सामने रख दो, पोटैटो चिप्स का. ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्कोहल भी मत पिलाओ आप, वो फिर भी चिप्स पूरा खा जाएगा. Potatoes are the most nutritious food. In our culture, every vegetable, 90% of the vegetable across the country being cooked, potato आ जाता है उसमें. You know why? Because potatoes carry a huge quantity of magnesium. Your brain micro mineral levels पे बात कर रहा हूँ अभी, मैग्नीशियम पे चलता है बहुत कुछ. आप अगर डिप्रेशन में जाते हो या कोई होम्योपैथी दवाई लेते हो तो आपको मैग्नीशियम खिलाया जाता है. ये तो एक आलू कितना महंगा है, रोज़ खाओ आप अच्छे से. यस, वही आलू एक वड़ा और पाव में जाता है. वड़ा हेल्दी है, पाव अनहेल्दी है. फिर फ्राइड खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन उसको पाव के अंदर खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए. ठीक है, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को समझना है. आप टाइम फिक्स कर लो, आप वो टाइम पे आप वो खाओ. अगर आप 4 बार खाओगे, 5 बार खाओगे, टाइम फिक्स रखो. आपकी इच्छा अभी वॉलनट खाने की है, वॉलनट खा लो. आपकी इच्छा दाल चावल खाने की, दाल चावल खा लो, लेकिन टाइम पे खाओ. इफ़ यू डू दिस, जस्ट लिसन टू योर ब्रेन, सेलेक्ट द फूड, कैलकुलेट ये सही है या गलत है, बस खाओ. आपका वेट भी लॉस होगा, आपके इंचेस भी लॉस होंगे, आप हेल्दी भी फील करोगे. आप जो एक्सरसाइज करना चाहते हो वो नहीं हो रहा है, वो भी होगा. That was the next topic. I'm sorry, I'm jumping there. No, you're not. It is just You're doing interrelated. really well. Yeah. There is a question coming from
Vandana Mittal, and there's a question Yes. coming from Anjana. So I'm going to get Vandana Mittal right there. Vandana, Yes, hello sir. yes. सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, मुझे वैसे भी इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। मैं ये पूछना चाहती थी कि हमें कैसे पता चलेगा, जैसे आपने कहा कि आपकी बॉडी को टीटी खेलना है या स्विमिंग करना है, तो हम कैसे पता करें? मतलब हम लोग वैसे यंग तो है ही नहीं, वी आर ओल्ड, लेकिन फिर भी नेवर लेट, कैसे पता करें कि हमारे लिए क्या ठीक है? Madam, age is always a number. ओके, If an 80-year-old, 90-year-old can work on the farm field plowing, so at 50, 60, 70, how can we get old? नो नो, आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट ओल्ड, मतलब हमने इतने I टाइम am को बिता saying that दिए। he's हाँ, plowing. वो इतना फिजिकल वर्क कर रहे हैं। जब आपकी खुराक अच्छी होगी ना, जब आपका खाना अच्छा होगा ना, तो आपका शरीर उस चीज़ को सपोर्ट करेगा जो आप करना चाहते हो। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, अब धीरे धीरे तो हम कैसे पता करें कि क्या चीज, कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छी है, क्या हमको करना चाहिए? दैट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक। तो वो ऐसे अनु जी का आई कैन स्पीक बिकॉज आई नो फॉर सो मेनी इयर्स, हाँ, so we यस just यस sit across and then we just exchange. यस यस यस, And with her, आई it नो, is very normal that don't have to think कि मुझे क्या बोलना है. I can just see and I can tell her. She can tell me what she thinks and she can just tell me. यस So यस, the that concept is इसकी completely तरह से different. करेंगे ना, एक और सेशन रख लेंगे भूपिंदर इसके ऊपर, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि बॉडी को समझना कैसे है, विद न्यूट्रिशन Yes. और बॉडी को समझना कैसे है। ताकि वंदना, आप जो पूछ रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली वंदना ये पूछ रही है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे स्विमिंग करनी है, मेरी बॉडी मुझे क्या क्या रही है। और कितना अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि बचपन में जब हम कहते हैं हम ये करना चाहते हैं तो माँ बाप कहते हैं नहीं करना। अब इतनी कंडीशनिंग हो गई है पानी की तरह कि हमने नहीं करना है, क्योंकि गुड गर्ल सिंड्रोम में चल रहा है कि हमें शायद यहाँ आके ये सीखना पड़ेगा कि वो करना कैसे है जो हमें करना है। और शायद वो सिर्फ एक चीज पे लागू नहीं होता है, इट इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग इन आवर लाइफ, कि जो हमारा दिल चाहे वो करना कैसे है। क्योंकि दिल हमारा तभी चाहता है जब हमारा ब्रेन कुछ कहता है। हमने ब्रेन की सुनी कब है यार? हम तो सबकी सुनते हैं, अपनी कब सुनी हमने? चलिए, आई होप यू गॉट द Thank you. आंसर टू दैट। Yes, yes, sir. Thank you so बिल्कुल much. बिल्कुल। एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसे वाले सेशंस और होने चाहिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बढ़ावा का। एंड अंजना आप आ जाइए फिर से। आपका एक सवाल है कि डू वी प्रिफर, व्हाई डू वी प्रिफर, ये तो भूपिंदर का पेट टॉपिक है। चलिए भूपिंदर बता दीजिए लोगों को कि व्हाई डू वी प्रिफर स्वीट्स ओवर सॉल्टी फूड और वाइसा वर्सा। इसकी जो इसने मुझे थियरी बताई थी ना, तो मेरी बत्ती गुल हो गई थी एक मिनट के लिए। यार ये क्या बोल गया। नाउ थिंक अबाउट इट कि सॉल्टी फूड क्यों हमारा दिल करता है। मैंने काफी लोगों को देखा है कि नमक कितना ही पड़ा हो, वो एक्स्ट्रा नमक लेके आए, चिपकियां मार के खा रहे होते हैं। एंड फॉर सम, नो मैटर व्हाट दे हैव अ प्रॉब्लम, वेदर दे हैव अ डायबिटीज, कितनी ही ऊपर जा रही हो, कुछ भी हो रहा हो, दे हैव टू हैव देयर शुगर। मतलब चॉकलेट और मिठाई के बिना उनकी जिंदगी चलती नहीं है। कुछ ऐसा जैसे कि मीठा खाए बिना अगर मर गए तो भगवान भी बोलेगा क्या हो गया। चलिए भूपेंद्र थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डाल दें। और हम टाइम है हमारा 1:47, अपने पास रह गए अगले सिर्फ 7-8 मिनट। चलिए। So sugar is something which today it is not tagged, but it is more deadlier than any sort of addiction or drugs, because you are actually addicted to it. And most of the people, as per my data and working, is that most of the people only ask for sugar because they don't eat enough food, okay, and they work too much. Sugar is nothing more, is just buying energy. आप एक शुगर पिल लेते हो ना, आप एक्स्ट्रा टाइम बाय करते हो, क्योंकि आपके पास खाने के लिए टाइम नहीं है, आप उतना सही खाते नहीं हो, ठीक है। सो अ वेरी सिंपल सिचुएशन, सो आई वर्क विद एथलीट्स, सो इफ़ आई हैव टू मेक देम प्ले और वर्क फॉर 5-6 आवर्स, मैं उसको बीच में ब्रेक दे के खाना नहीं खिला सकता, क्योंकि वो खाएगा, टाइम लगाएगा, फिर उसको पचाएगा, टाइम लगाएगा। अगर वो हाई इंटेंसिटी रनिंग गेम है तो वो उसमें वापस कैसे जाएगा? खा के कभी दौड़ने की कोशिश करो तो आप नहीं दौड़ पाओगे। तो मैं उसको शुगर जेल बना के दे दूंगा।
एक शुगर जेल दूंगा, जस्ट गिविंग अ काउंट, लेट्स से मैंने उसमें 100 कैलोरीज का बना दिया, उसको मैंने एक पिल दे दी, उसने बिना खाए एनर्जी इंक्रीज हो गई, उसने आधा घंटा बाय कर लिया। शुगर टेक्निकली सरपासेस द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ फूड। ओके, जो ऑर्गन्स है ना, उनका एक प्रोसेस है, यहाँ से जाता है एक एक करके पूरा गोल गोल घूम के स्टमक ये वो एक्सक्रीट आउट होता है, और जो भी हमारे पेट में जाता है ना, सब कुछ सब कुछ शुगर ही बनता है, ग्लूकोज, एनर्जी। जब शुगर लेते हैं ना, इट डायरेक्टली गोज इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। ओके, यू गेट इंस्टेंट एनर्जी। तो आप क्या कर रहे हो ना, शुगर ले रहे हो, आप इंस्टेंट एनर्जी बाय कर रहे हो, क्योंकि आपके पास खाने के लिए टाइम नहीं है। ओके, दैट इज वन। नाउ इफ वी गो बैक टू दी ओल्ड सेंचुरीज ये वो, तो लेट्स से अभी ईद आ रही है, ईद में आप घर पे जाते हो सबाजी के, सबाजी सबसे पहले मीठा खिलाएंगे। पूछो क्यों? सबाजी आपको पता है आप क्यों खिलाते हो मीठा सबसे पहले गेस्ट को? हमारे को तू मीठा क्यों खिलाती है? एक्चुअली सब मीठा गेस्ट को पहले बोलिए। पहले खिलाने से ना वो मतलब उनका स्टमक फुल हो जाता है, फिर वो बिरयानी कम खाते हैं। तो मैं इसकी रियलिटी बताता हूँ आपको। सामने वाला बिरयानी तो भी उतनी ही खाएगा जितनी उसने खानी है, कि वो लजीज होगी और दिल से और प्यार से बनी हुई है। आप भले 2 बॉल कटोरी खीर कुरमा मीठा खिला दो, तो भी वो बिरयानी उतना ही खा के जाएगा, आपकी जितनी बनी है बिरयानी पूरी ख़त्म हो जाएगी। सो जब मैं सबाजी के घर पे जाता हूँ एज अ गेस्ट, ठीक है, उनको नहीं पता कि मैं किस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से आया हूँ। शायद मैं रास्ते में आ रहा था, मैं किसी से झगड़ा करके आया, खुशी का माहौल है, मैं शायद गुस्से में हूँ, ठीक है, अभी त्यौहार है, खुशी मनानी है, तो हम सबका मूड मैच होना चाहिए, सब खुश होने चाहिए, हम मीठा खाते हैं पहले, एंड हैप्पीनेस, यू फील हैप्पी, ठीक है, योर न्यूरो सेल्स गेट इग्नाइटेड, यू फील हैप्पी। भले मैं कितना भी गुस्से में आया हूँ या गम में आया हूँ, मूड चेंज हो जाता है। यही चीज़ हम हर एक फेस्टिवल में करते हैं। हम किसी की मौत पे मीठा क्यों नहीं खिलाते हैं वहाँ पे सामने खड़े होकर? क्योंकि अगर वो वहाँ पे हंसेगा और खुश होगा तो वो तो बहुत मार खाएगा, मातम बनाने आया है और ये तो मुंह मीठा करके खुशी मना रहा है, मतलब उसको खुशी है कि ये बंदा चले गया है। ओके, सो दैट इज़ वाई इन आवर कल्चर वी ऑलवेज हैड स्वीट्स on occasions. That is why we have so many त्यौहार्स coming every fortnight, once a month, so that you get happy, you go back to normal, you get happy, you go back to normal. हमने आज वो सब चीज़ें ना रोज़ी त्यौहार बना दिया है, दिन में 4 बार 3 बार, इतने ऑप्शंस है ना, हम बस मिठाई खाए जा रहे हैं और फिर हम गाली देते हैं कि ये राइस खाने से ना शुगर बन रहा है मेरी बॉडी में, लेकिन मैं ये मीठा नहीं छोड़ सकता। एंड देन आई ऐड दिस, if rice was the culprit, then I'm sorry, the entire South clan would have been full of diabetes. Fortunately, they are not. No, तो बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। साउथ के लोग चावल जितना खाते हैं और उनकी खुराक उस पे है, एंड दे आर हैप्पी विद इट, दे कैन नॉट डू विदाउट इट। चावल निकाल दोगे तो जान निकाल दोगे। मैंने को तो ये समझ में आया कि भूपिंदर ये कह रहा है कि हम खुशी की पिल हर महीने खिला सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे हम हर रोज खा के ऐसे ऐसे हैप्पी होना चाहते हैं, क्या है ना? Because you are not happy. Yes. If you're happy and you know it, if you're not happy then you know it, you know how it is. चलिए, अंजना कुछ पूछ रहे हैं, बट अंजना आपके सवाल से पहले, because we are right at the end, fag end, I want Bhupinder to tell us also about the salt. क्योंकि मीठा मुंह कराना तो समझ में आ गई, अब ये नमकीन का क्या फंडा है भूपिंदर? Salt is mostly to do with that you are not hydrated, and somewhere certain vitamins are getting lowered. So it is anything जो आपकी बॉडी में कम होगा ना, वो आप ज़्यादा देना चाहोगे, वो आप डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हो, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड है तो सप्लाई जाए जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है वो। आप हाइड्रेशन बढ़ाओगे तो आपको बेटर लगेगा। स्टार्ट एडिंग सॉल्टी फूड, जो आप एक्स्ट्रा सॉल्ट खा रहे हैं उसको आप फूड की मात्रा में यूज़ कीजिए, जैसे कि पिकल है, इट इज़ एनी वेज आउट ऑफ सॉल्ट। ओके, अगेन देर इज़ अ लॉट ऑफ लॉजिक वाई अ पिकल इज़ मेड एंड प्रिजर्व्ड
ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज पिकल्स आर वेजिटेबल्स, और टेक्निकली देखा जाए तो अब साल भर सेम वेजिटेबल्स रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, हमारे एंसेस्टर्स ने एक बर्नी में तेल और सॉल्ट में मिक्स करके धूप लगा के बंद करके दे दिया हमको, जो 6-6 महीने खाओ आप। लेकिन हम उसमें भी समझते नहीं है कि अभी हम क्या करें। देन हम जाते हैं मार्केट में, जो पूरा मसाला भरा हुआ जो पिकल होता है ना, उसके अंदर पिकल के नाम पे तो मतलब जितनी मेरी उंगली है ना उससे भी छोटा अचार होता है, और उससे ज़्यादा चटपटा उसका मसाला होता है। आपको वो ज़्यादा पसंद आएगा, आप उसमें तेल नहीं क्वेश्चन करोगे। लेकिन जो घर पे जब अचार बनाओगे ना, आप उस पर राई का तेल यूज़ करोगे, तो आप बोलोगे ये तेल तो बहुत फैटिंग है यार, और तेल देखो कैसे बह रहा है, ये मेरे पेट में जाएगा। सो you need to add pickle, homemade pickle I say always. And even though we are growing, we don't have time, but there are many people who made this as their need of our, they work and they create such pickles. कितने होम किचन्स हैं, होम पिकल वाले घर पे बनाने वाले हैं। हमेशा हम चूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो। मेरे पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, मेरी वाइफ के पास टाइम नहीं है, कभी भूले भटके बना ले तो ठीक है, हम किसी से खरीद लेते हैं जो घर पे बनाता है। क्वालिटी हम हमेशा चेक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो बात ये है कि आप जो भी ज्यादा खा रहे हो या जो भी आप ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर रख रहे हो, इट्स अ कंपनसेशन ऑफ व्हाट यू डोंट हैव। पानी अपने अंदर ज्यादा रख रहे हो तो पानी कम पी रहे हो, नमक ज्यादा खा रहे हो तो नमक कम है, और अगर चीनी ज्यादा खा रहे हो तो चीनी कम है। तो सोच ले, जो भी ज्यादा खा रहे हो उसको ठीक करने के लिए आप उसे एक्स्ट्रा खा रहे हो। और कहीं पे वी आर एडिक्टेड टू व्हाट वी ईट। दारू पीने वाले को हम बोलते हैं दारू पी रहा है, ड्रग्स खाने वाले को बोलते हैं हाय हाय फैट फैट छिछी। पर कहीं पे पानी पीते हुए हमें जान निकलती है हमारी, और नमक और चीनी खाते हुए हमें समझ में नहीं आती कि यार टेस्ट ही नहीं आया, थोड़ा और डालते, टेस्ट नहीं आया। बेसिकली आपको जिंदगी में कहाँ टेस्ट नहीं आया ये ढूंढिए, और लाइफ में डिस्ट्रेस हो जाएंगे आप, क्योंकि आप सही सही खाने खाएंगे और ये समझेंगे कि आप खा क्या रहे हैं। आई एम really grateful to Bhupinder today. We had a question that was from Anjana, but if we have time, because I have 4 minutes and we do need to move out of the session, I'm very grateful, Bhupinder, for your amazing insights, because they were very different. They were not the same. And खाने के साथ साथ पानी का भी उतना इम्पोर्टेंस है। और मुझे सबसे बड़ा स्टेप जो है, अगर कोई भूल गया है या नहीं थे उस समय, पानी में बैठ जाओ यार, चुल्लू भर पानी में, एक बकेट भरो पानी की, पैर डालो उसके अंदर, साथ में शिकंजवी रखो और पियो। ऐश ही ऐश है, ऐसे शिकंजवी नहीं, पानी पानी पियो। बहुत अच्छा। अंजना कह रही है वंडरफुल सेशन, और आप भी फटाफट डाल दीजिए चैट में आपको कैसा लगा ये सेशन। अच्छा लगा, खट्टी मीठी बातें हमारी अच्छी लगी तो हम फिर से आएंगे, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं लास्ट स्लाइड्स को, अगर मुझे मेरी स्लाइड्स मिल जाए तो। मिल गई। तो आज हमने देखा कि ब्रेन और स्टमक का कनेक्शन क्या है, और हमने खाने क्या खाने थे उसके बारे में देखा, वाटर क्या है, और क्विक एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं। बेसिकली हम एक्सरसाइज करते हैं, हम उसे एक्सरसाइज का नाम नहीं देते हैं। कहीं पे हमें कुछ एक्स्ट्रा करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए अच्छा लगता है। जो हम नॉर्मल दुनिया में कर रहे हैं उसे हम not enough. Or we also looked at the nutritious food. When we're looking at de-stressing exercises over here, we are bringing your attention to why you're overcompensating with certain foods in your body, and how's your body getting stressed out by holding certain things in your body. So become very mindful of what you're eating, how you're eating, why you're eating. और ये सवाल पूछिए अपने आप से कि आज मुझे मीठे की तलब ज्यादा क्यों हुई। क्या ये तो नहीं कि आज आपका हस्बैंड सड़ू सड़ू बन के आया था, या आपकी वाइफ की शक्ल पे इंडिया का मैप बना हुआ था, या कुछ ऐसा था कि आपको मजा नहीं आया। तो हो सकता है कि मिठास आप कहीं और ढूंढ रहे हैं, खा कहीं और रहे हैं। चलिए, अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया तो और भी क्लासेस हैं। Do punch on the explore and do click on the explore and see if you can
find other classes that will interest you, because there's so many that are going on from morning to night, and I'm sure you'll find something that is related and resonates with you. चलिए, आप अपनी ईमेल चेक करेंगे और फीडबैक भेजेंगे. आप अभी भी आप फीडबैक डाल सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि भूपिंदर शायद वो फीडबैक देखे ना देखे, आप अगर यहाँ डाल देंगे भूपिंदर के लिए, तो ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ही इज, उनकी जो बातचीत थी आपके दिल तक गई है. Share your experiences and hashtag #GetSetUp @GetSetUp. और अगर आपके पास कोई GetSetUp को आपके पास स्टोरी है GetSetUp के लिए कि आपके साथ GetSetUp ने आपको कैसे empower किया, तो please do connect with social@getsetup.io. If you want to host an interest group, please do contact help@getsetup.io. So last words to Bhupinder कि Bhupinder क्या कहना चाहेंगे हमारे लोगों के लिए, सबके लिए. What will you want to say to them? We still have 1 minute. क्या कहना चाहेंगे आप सबके लिए? कुछ ऐसा टिप दे जाइए ताकि ये सब अपनी एज ना काउंट करें, बस कैलोरीज काउंट करें. हाँ जी. अपने यहाँ बहुत पुरानी सेइंग है कि हम जीते हैं और हम 3 चीज़ों के लिए काम करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान. ठीक है. इफ़ यू सी, पहले रोटी है, फिर कपड़ा है, फिर मकान है. ओके. लेकिन द लाइफ हैज़ टर्न्ड यू इन दिस वे दैट पहले मकान हो चुका है, फिर कपड़े हो गए और फिर बचा तो रोटी भी मिलेगी. ओके. सो रोटी हैज़ बिकम योर लास्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट होना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन. अगर रोटी रहेगी ना तो आप कपड़े भी पहन पाओगे जो आपको पहनने हैं, और छत भी रहेगी, क्योंकि आप ये 2 चीज़ों के लिए आपकी बॉडी उतनी एनर्जेटिक और उतनी सही रहेगी कि आप वो एक्स्ट्रा कर सको. अगर आपको 8-10 घंटे काम करना है या आपको घर संभालना है, आपकी बॉडी में उतनी फुर्ती होनी चाहिए, ना कि आपको ऐसे लगे कि आप पनिश कर रहे हो अपने आप को. ओके. एंड दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज से दैट फूड इज़ टू बी रेलिस्ड एंड नॉट लिव विद द फीलिंग ऑफ बीइंग पनिश्ड, बिकॉज वी आर लिविंग टुडे feeling that the food is punishing me because you're falling sick, you're feeling unhappy, you're feeling that it is not digestible. That is unhappiness. क्योंकि आप अपने आप को पनिश कर रहे हो. आप जो खा रहे हो उसको relish कीजिए. You will suddenly change and see the change in you in next span of 7 to 10 days of you just doing it every day. And everything depends on discipline and dedication of you doing it. चिट्ठी बना के, पर्चा बना के, मैं भी आपको एक प्लान बना के दे दूंगा PDF पे, अपना नाम डाल के, फ़ोटो भी लगा के. वो देखने से कुछ नहीं होगा. जब आप वो करोगे तभी प्लान वर्क करेगा. It's the same thing. Just Absolutely. What's going to stop you guys from drinking enough water every 1 hour? हमने आज की टिप ये है कि हर 1 घंटे में हम 250 yes, 250 ml, 1 गिलास पानी. 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी हर घंटे के लिए. अगर 1 गिलास पानी हमने हर घंटे पी लिया तो कैसा होगा हमारा नजारा? 4-5 दिन के बाद हमें खुद ही प्यास लगेगी. आप सुसु की तरफ मत देखे, जाने दे जो अंदर पड़ा है. क्या है ना, हमने इतना संभाल के रखे हैं अपने टॉक्सिन्स. जाने दे यार, वॉश आउट होने दें. आपको कहीं पे भी भर्ती नहीं होना पड़ेगा टू डिटॉक्सिफाई. इसलिए पानी भी पियो, सुसु भी करो, ऐश करो यार, क्योंकि जिंदगी एक ही है. सिस्टम को चलने दो. चलिए, अगर आपको मेरी खट्टी मीठी बातें पसंद आई तो प्लीज कीप कनेक्टिंग विद अस. एंड थैंक यू भूपिंदर वंस अगेन. कितनी बढ़िया टिप थी. शबा, कुछ कहना चाहते हैं आप? अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सेशन. थैंक यू जी. आज मैं ये बोलूंगी, मजा आ गया. जानम समझा करो. Thank you for समझाएं. चलिए, बाय बाय. Bye. Thank you so much.